3, 2, 1, and action. There are 4 a.m. friends, and then there are friends you... There are 4 a.m. friends, and then there are friends who... Don't do that. Well, what am I doing, but? No, I just picked up. I wrote this for you. Bol. You do it. I wrote this for you. You know what? It's a great line though. How romantic of you. There's a semicolon at the end of it. So water went into my colon, na? So as I was saying, there are 4 a.m. friends, and there are friends who you can call at any time of the day and they'll be there for you. And then there are those friends who, when you call and ask them that, you want to see them, they very nonchalantly say, "Ha milta hu na, gaadi bhej de." And that's the friend I'm talking about today. But you're also using words like nonchalantly and all. Because Spelling bata. Nonchalantly ka. Do dena. Do plate. So this is M&M Spotlight, and tonight on What's Your Mantra, the spotlight is on a man who has just been declared the youngest 50-year-old man. He's one man who's rumored to have been abducted by aliens. I don't know what he was doing on the other planet. He was swimming with the whales when I was in my nappies. And a few days back when I was talking about him to someone, all I said that he's a giant of a man trapped inside, let me be very politically correct, a petite human body. Petite ka spelling bata. Brajesh Hirji, ladies and gentlemen, or whoever's watching. I used to live close to JB Petite High School. वो JB Petite है. But I didn't want to call you small, no, so I said petite. तो क्या अभी मेरे को कुछ बोलने का? नहीं, कुछ नहीं बोलने का. इधर कुछ ऐसे करने का नहीं होता है. I was not abducted by aliens. I abducted an alien sitting in front of you. Why would this term Hurricane Hirji just suit you so much, or you and your son? Okay, so first thing, please speak to me with respect. Okay. G is there in my name from the first only, okay? Hey, by the way, I said that. ये तुमने रेडियो पे तुम यूज करते हो मेरे नाम में जी इतनी इज्जत है मेरी. Please, can you tell the world who gave you this line? Friend of mine, Saurabh Ratnu. No, I did that on Pro Kabaddi. Oh, didn't I? If it happened, मैंने किसी से सुन के नहीं किया था. ठीक है भाई. ठीक है. So people think. कैसे कितनी इनकी और इज्जत करूं, इनके नाम में ही जी है ब्रजेश हीरजी. Okay. So in terms of Hurricane Hirji, so what happened was, so I give random names to my son, okay? He's a 4-year-old, my Balak Paneer Palak. Yeah, congratulations on fatherhood. I'm going to talk to you about how fatherhood has changed your life. There's a lot of people who've called you daddy. We really have to do this. But anyway, so I give my son random names, like there's a name for the week. So we were holidaying in Goa, and that week his name was Rapchi Button. And he saw the Incredibles 1 and 2, and he's growing up, he's talking to friends, he's reading different things. Came home, I was changing him, took off his socks, उसने अपना socks उल्टा किया, ऐसा हाथ पे डाला, ऐसा खड़ा हुआ. First, I was Rapchi Button. Now, I am Hurricane Hirji. और भप्पा करके मेरे को इधर पेट में रख के दिया रे सीधा ऐसा. और मैं ऐसा कर रहा हूँ, बोला बाबा I got you in the solar plexus. मैंने कहा 4 साल का है रे तू, कहाँ से ये सब? How is this just in your family? क्यों ये? I think you did something like that. बाबा देख, we are not from Wakanda, we are from Wakanda forever. Wakanda. So Googly की बात निकली, so let's talk. You've told the world why is he called Googly, and that the fact that you didn't know whether it was going to be a boy or a girl. तो खैर तो basically क्या हुआ कि I was convinced that I was going to be father to a baby girl, and OT में सा निकला अरित्र हिरजी और ऐसा नर्स उसको लायन किंग के वो मंकी के जैसा पकड़ के खड़ी है ऐसा. मैं देखा और बोला अरे लड़का ये तो गूगली हुआ करके उसका पेट नेम गूगली. But do you ever call him Orithro? See, I've told my wife and we named him. See, you're saying Orithro because you are a what do you call Probashi Bengali. Yes, you could have called me a fake Bengali. It's okay. But an actual Bengali says Orithro. You're more Bengali than you're a Gujarati or a Maharashtrian, isn't it? No, I'm not a Guju. I'm a bad Jew. The thing is that
अभी उसका वो क्या नाम रखे, क्या नाम, राशि है, क ल ऐसा सब राशि था, तो मैंने बोला काल एल नाम रख दो, सुपरमैन का बाप। क्या? हाँ क और तो बट क ल ऐसा सब नहीं था राशि में। तो खैर मैंने बोला कि भाई मैं आंख बंद कर रहा है, मैं जिधर उंगली रहेगा वो नाम उसका, अरित्र नाम। तो अभी मैंने जब अरित्र नाम आया तो मैंने अपनी पत्नी, शी इज बंगाली, सो आई टोल्ड हर के देख इसको ना, योर साइड ऑफ द फैमिली when they call out to him, it'll sound like tinkling pearls and chiffons swaying in the breeze. Oritro, Kamanacho, Ekanesho, Boshun. Have your chingri march nicely, Oritro. You could be an ASMR Bengali voiceover also. ASMR बोले तो? कानों में एकदम फुसफुसाने वाली चीज़ है, आजकल नई चीज़ आ गई मार्केट के अंदर, where you feel as if you're talking to somebody in your ears, like. तो मैंने बोला मेरी बीवी को कि देख तेरी फैमिली जब बुलाएगी तो ऐसे. Why isn't he called Jignesh or anything which a Gujarati He can boy could never have be been called? called Jignesh. He'll only be called Jignesh. So anyway, so मैंने बोला अपनी बीवी को कि तेरी family, when your side of the family calls out to him, it'll sound like we are in a high-end, very expensive clothing emporium. But when my family calls out to him, it'll sound like someone stopping an auto rickshaw. Aritra, Erixa, ऐसा. तो अभी उसमें तो ओरित्रो कोई नहीं बुलाता है. मैं तो खैर लाइक आई टोल्ड यू, मैं तो कुछ भी नाम बुलाता हूँ. Yeah, your new name is Rapchi Button. नो, टुडेज नेम इज बा, कॉल मी PRIM. तो मैंने कहा उसका क्या होता है? प्रिम. मैंने कहा यू आर एनीथिंग बट प्रिम. यू आर नीदर प्रिम, यू आर नॉट प्रॉपर, बट ही वांट्स टू बी. मेरा नाम है प्रिम, प्रिम चोपड़ा. ऐसा कहे उसको ये ना आ जाए. It suit well. I call you Pompey. Sahil was asking me yesterday, why do you call him Pompey? Even I don't know. Because he's one of the most pompous men I've come across. And okay, do that. So Prim and Pompey goes Would well. a pompous man do this? Okay, very serious question. When Orithro was being born, Being born. जब पैदा हो रहा था वो, जब वो हो रहा था तुम OT में थे हॉस्पिटल में, who was this guy who was standing under the building and giving you a lot of himmat कि सब सही होगा? Now I have a feeling I'm realizing why my son at the age of 4 is hitting me, punching me and saying, Baba, solar plexus, you got hurt in the solar, because Mantra was standing below the. And he was born, and so now obviously, I told my wife, she said, how does he look sweet? And I said, there's blood on your cheek and all, we wiped that. And the doctor saying, ये कैसा couple है यार, बहुत ही random लोग है ये. तो वो सब हुआ और मैंने रोनी को बोला कि I'll just go and see him. And Roni's reaction, I mean, you've just given birth to a son, and her reaction was, इधर भी आ गया. This is the man who comes to my mother's house to pick me up when we are on our way to town from Andheri on work, rings the bell and says, Auntie, can Rajesh come out to play? This is the man who has given me confidence and all that when my son is being born. Yeah, man. Take a lot of pride. He's like our child, sort of a thing. So that's why his wife is always a little bit skeptic about me. It's not just my wife who's skeptical about him. It's a reasonably large part of the world's population. The best part is कि हम लोग The whole world. हम लोग नीचे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे होने वाला है. He says मैं 5 मिनट में एक बार देख कर आता हूँ कि क्या हुआ. And he's back in 10 minutes or something. And by that time हमारी चाय खत्म भी नहीं हुई. मैंने कहा क्या हुआ? बोले हो गया. नहीं, so I also remember that जब मैंने कहा हो गया, and he said, अरे क्या बात है ना. And I said, तो अभी बोर्डिंग स्कूल का सोचना पड़ेगा. मतलब मैं कितना आहत था, मैं कितना सदमे में था कि मैं बाप बन गया रे. खुद अभी उम्र खुद की मेरे को फील, मेरे को अब भी एक डायरेक्टर ने कहा, तो मैंने कहा रोल क्या करते हैं. The youngest 50-year-old. ना तो अभी उसी से तो एक का पिक्चर करेंगे. हाँ करें भाई, वो तो पेशा है अपना, तो क्या रोल है तेरे के हीरो का दोस्त. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना ट्विटर का बायो ठीक हुआ बदला नहीं अब तक. मेरा ट्विटर बायो हीरो का दोस्त. तो बोले, मैंने कहा लेकिन कुछ तो उम्र का लिहाज कर लेते. तो कहते नहीं हो जाएगा. मैंने कहा हीरो की उम्र क्या? बोले 30 टच 32 अराउंड. मैंने कहा और हीरो का दोस्त की 33 टच 35 अराउंड. मैंने कहा क्या कैसा उम्र का लिहाज तो कर लो. बोले 1 मिनट. ऐसा फोटो खींचा, अंदर गया, पता नहीं सब डायरेक्शन तो किसको दिखाया, बाहर आया. सर बोले आप कतई लौंडा लग रहे हो, आ जाओ शूटिंग पे. But bro, you played a college student even in Krishna Cottage, which I was just watching 2 days back. Every time I used to hear about Talli, I didn't know who this टल्ले ऐसा करके उसमें एक एक्टर चिल्लाया था जब मैं मरा था. You, Sohail Khan, you were all college kids. या
Yeah. Yeah. How British are you, man? How elite are you? No, don't do this. Don't do this. ये तो जो तू पूरा छापता है ना पूरी दुनिया को कि मैं एकदम मुंबई का एकदम. ब्रिटिश लोग ऐसा नहीं करते. Elite, elite, But you're elite. so Parsi, you're so elite, you're so old school Bombay, the last of the Mohicans. ओ काका कालबा देवी की पैदाइश में. ओल्ड स्कूल मतलब ओल्ड स्कूल का भी ओल्ड स्कूल. So it's Our researchers, somebody just mentioned, although I didn't need research on you, but somebody just mentioned you were born in London. Why the hell is this kind of information out there on the देखो internet? ऐसा है कि पता नहीं कौन विकिपीडिया से मेरा चंचुपात किया है. इट्स अ गुजराती वर्ड. क्या किया है? चंचुपात गुजराती वर्ड है. तो मतलब उद्यम मचाया है मेरे विकिपीडिया. और विकिपीडिया में लिखा है कि you were born in London. गनीमत है विकिपीडिया पे मेरा नाम विक्की बारी नहीं है, बट खैर विक्की बारी दोस्त है रे डायरेक्टर अपना. According to some sources, I'm born in London. According to some sources, I am born in Bihar. I am a Gujarati born in Bihar. You're getting that feel, bro. And then I went and lived in London. Then I came back and in Gujarati place. And now I have Lamborghini, Ferrari, Carrera. And I have bungalows in London. I have manor houses. YouTube में एक पूरा है ब्रजेश जी वेल्थ. उसमें इतना वेल्थ मतलब मेरी पूछ तो नहीं देखी होगी. ये आप ही करते हो ना नेट पे जाके? I do not do this. I do not do this. So as Mumbaikar as it can get. Of course, that's why you do one of the most popular. How's radio doing for you now? We've been talking about radio for so many years, but did you ever imagine yourself being a jock? You're a performer, but being a radio jockey, talking about Mumbai like as if you own it. 5 साल से पगार नहीं बढ़ी भाई. इतना शहर से प्यार करता हूँ. सोचो बच्चे की स्कूल की फीस सुनाऊंगा, समझ में आएगा आदमी क्यों कर रहा है. नहीं. So no, I really enjoy radio. I'm enjoying radio also because I love the city. I was, born here, brought up here. कैसा serious हो गया. मेरे को नहीं कहा serious because when you talk about Mumbai, you talk with so much passion जो रेडियो पे सुनाई देता है, and I enjoy it. I enjoy it as somebody who loves the city and doesn't know कि कितना कुछ बदल गया इस शहर के अंदर. From the time you were doing theatre, the way you used to travel, every time we go to town, you show me those buildings at Worli which used to be something else. We used to live in those places. Your dates used to be so much fun. Your walks in the park with Anup or everything. चरनी रोड में है सका पाटिल उद्यान. क्या? सका पाटिल उद्यान पार्क है चरनी रोड में, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स के सामने. उधर बहुत चलने को जाते थे हम लोग. एंड कहाँ बताया था आपके डेट्स के लिए कहाँ जाते थे? कुछ तो एक अजीब से आई डोंट नो व्हाट वर डेट्स लाइक बैक देन. नॉट बैक देन तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे डेट्स बैक देन वर सेम खजूर. तो बट नहीं. सो हाँ बट रेडियो आई लव बिकॉज आई लव द सिटी. आई लव टू टॉक ऑफ कोर्स. आई लव द म्यूजिक आई प्ले on my show. Also, I like giving random trivia like गुलशन बावरा का नाम बावरा काय को था मालूम है क्या? Because बहुत कम लोग को मालूम है, मेरे को मालूम है. मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट किया है ये सब पढ़ने में और ये सब अर्जित करने में. गुलशन बावरा का नाम बावरा था क्योंकि एक प्रोड्यूसर ने उनको देखा, शर्ट बाहर थी लाल कलर की, घुंघराले बाल, बोले ये गाने लिखेगा, ये तो बावरा दिखता है. तब बस गुलशन बावरा. Okay, so for people who don't know about this thing, Brijesh has a fetish for headphones, speakers. तूने अपने एक रूम के अंदर, तेरे खुद के रूम के अंदर एक केवल एक गद्दा है, बेड भी नहीं है, गद्दा है, और लेकिन वहाँ पे स्पीकर्स इतने महंगे लगाए हैं कि उसमें 2 घर आ जाते हैं लोगों के. क्या है ये? एक पहली बात तो ना, तू फेटिश वर्ड बोलता है ना, इट डजंट कम आउट राइट. इट जस्ट साउंड्स रॉन्ग. Because I'm talking it in correlation with you. ये है प्यार की हद के डिस्को स्टेशन फेटिश. तो ऐसा सब बोल. विप बिप रहेगा सब. है ना तेरे मास्क बीस. You might be that also at times. You never know. I've seen you dressed up in cosplay. देखो जिस कमरे का तुम जिक्र कर रहे हो उसमें जो गद्दा था वो हट चुका है. वो कमरा मेरा वर्क एरिया है. मैं बहुत कुछ करता हूँ उधर से. और जिन स्पीकर्स का तुम जिक्र कर रहे हो, स्पीकर ने, एम्प ने, स्ट्रीमर ने, भाई मैंने वो मेरे को साउंड अच्छा लगता है, मेरे को संगीत अच्छा लगता है, मेरे को सुनने का, प्रॉपर सुनने का. बचपन में मैं अगर मेरे बापू से मेरे को चाहिए करके कुछ अगर निकाला है ना, वो वीडियोकॉन का म्यूजिक सिस्टम था. विरार गए थे हम लोग ट्रेन से वो खरीदने को. 5,000 रुपये में खरीदा था और क्या भारी भीरी हम लोग दोनों चढ़ के. तो मेरे पापा ने बोला फर्स्ट क्लास. घुस गए, पकड़े गए, फाइन देना पड़ा, टिकट नहीं खरीदा था. सुनो, लेकिन वो वीडियोकॉन के बाद मैंने एक ही स्पीकर लिया था. बोस का बुकशेल्फ था. बोझ अपने को लगता है
लेकिन वो उतना कुछ ऐसा महंगा नहीं था भाई। उसके बाद मैं 12 साल, मैं मिडिल क्लास आदमी है, 12 साल खर्चा कैसे कर, कुछ हो गया तो कर। उसके बाद मैंने हिम्मत करके फाइनली जब मेरी बीवी ने बोला कि मेहरबानी कर भाई मेरे को थेरेपी में जाना पड़ेगा अगर तू नहीं खरीदेगा साउंड सिस्टम, तो तब जाके मैं खरीदा। और हाँ, हेडफोन मेरे को अब भी, ये तेरे ऑफिस के ऊपर ही है एक दुकान, उधर सब दिल में छाती में टाइटनेस हो रहा है, लेकिन शौक बहुत कम है ना रे। अच्छा। देख एक सेकंड, चश्मे खरीद। बस मेरे को बताने देना। हाँ, ये जो चश्मों का जो ये जखीरा लगाया है आपने। अरे अब भाई, मैं एक चश्मा दिल्ली के खान मार्केट से खरीदा था, ठीक है, वो खरीदा मैंने बोला बहुत अच्छा। और मेरे को, मैं वो दिल्ली की वो दिल्ली जब भी मैं जाता हूँ, मैं खान मार्केट के चश्मों की दुकान में जाता हूँ देखने को कि ये क्या, ये कौन सा कंट्री, ऐसा सब करने को, ठीक है। ये दुकान में मैं कुछ 10 12 15 बार गया रहेगा। तो ये आदमी ने देखा मेरे को, बोला सर आप इतनी बार आए हो, एक बार भी चश्मा लेके नहीं गए। बोला भाई आपको क्या मालूम हम कितना फकीरी से गुजर रहे टाइप। तो बोले एक काम करो, ये अच्छा लगा, मैंने कहा है तो माइंड ब्लोइंग। कहता है सर 50% ऑफ आप लेके जाओ। वो मैं लिया भाई, एक चश्मे का एक्सपर्ट है घाटकोपर में। मैं बोला, मैं दिखा, बोला ये है। बोले सर ये आप ईबे पे बेच दो, आपने जितने में ख़रीदा है। उसने बोला आप उससे 9 गुना ज़्यादा पैसों में ख़रीद सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ 500 फ्रेम बनी है। वो मेरे को मालूम था कि उसकी सिर्फ 500 फ्रेम बनी थी और मेरा फ्रेम नंबर है 384 बिल्ला नंबर। तो वो है, तो भाई उसका ये एंड ऑफ द डे भाई कुछ नहीं रहा तो दुकान चला दूंगा चश्मे का, ठीक है। तो चश्मे, हाँ चश्मे का शौक। और घड़ियों के बारे में नहीं बताओगे लोगों को? अरे घड़ी मैं अरसों पुरानियां खरीदता हूँ, ये एक भाई की चलो हाँ, ये आज बाय डिफॉल्ट इन्होंने कुछ ताजी मॉडर्न घड़ी पहनी है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रजेश हीर जी के कलाई पे यू विल फाइंड वॉचेस जो कि शायद बाबा आदम के जमाने की हैं। कई तो उल्टी उल्टी चलती हैं भाई। क्या शौक हाँ, है? एक घड़ी है जो उल्टी चलती हुई, जो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। बट घड़ियाँ जो मैं यार एकदम पुरानी यूज्ड घड़ियाँ खरीदता हूँ, उनको रिफर्बिश करके पहनता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा लाखों रुपए नहीं खर्चा करता हूँ घड़ी पे। तो भाई जितना लोग 4 दिन पानी पूरी खाने में उड़ा देते हैं, उतना मेरी घड़ी आ जाती है यार। इतनी महंगी पानी पूरियां नहीं बनी अभी। अरे तेरे को मालूम है कितना क्वांटिटी में पब्लिक पानी पूरी खाती है इधर। तो खैर, तो मैं जैकी पानी पूरी वाला मालूम है तेरे को? कौन है? जूस किम में जूस कीम, यस यस यस, जैकी भेल। तो खैर, लेकिन ये सीजन में नहीं है भाई, किधर भी जैकी रेवे के टाइगर रेवे जाने का नहीं। मौसी तो Have you worked with Jaggu Dada? यस, How was your experience with him? क्या था, कहाँ पर, कौन सा वाला? मैंने किया एक से ज़्यादा काम किए जग्गू दादा के साथ। एक मेरे को याद आ रहा है, अरे वो कौन सी पिक्चर थी, संगीत शिवन की, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, रितेश देशमुख, अनुपम खेर, जग्गू दादा भी थे उसमें, चंकी पांडे। तो उसमें जग्गू दादा, मैं ऐसा मेकअप करके आ रहा हूँ सेट पे, बोले ओ गुजराती है। बोला हाँ जग्गू दादा, वेची नाक। बोला क्या बेचूं शहर में? बोला अब तक खरीदना शुरू नहीं किया। वेची नाक, इधर आ इससे मिल। तो भाई ऑटो वाला था, खाने का डब्बा लेके आता है। तो बोला इसका नाम ये गफ्फूर, देख बात कर, मालूम पड़े, अब बोलते मालूम पड़े नाम गफ्फूर, बात कर। अरे यार इसको समझा जग्गू को रे। भाई एक से एक आउटलाइन आइटम दोस्त है जग्गू दादा। जो आदमी था, मतलब एक्टिंग शुरू करने से पहले वही आदमी है। दैट मैन इज जस्ट बॉस, True that, sir. दैट मैन इज लव यार, इट्स फिनोमिनल मैन। तो हाँ, वो कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये मोटिवेटर्स या इंस्पिरेशन वाले जो लोग हैं, जो अध्यात्म बाबागिरी करते हैं, सारी चीजें चल रही थी, वो सब एक तरफ है, जग्गू दादा का ज्ञान एक तरफ। व्हाटएवर ही हैज टू से, आई थिंक ही सेज इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, इन द मोस्ट वंडरफुल वे, because it genuinely, it's natural to me, not even thinking he's giving यार, he's just saying यार, he's just talking like you and me. It's brilliant man. तो हाँ, घड़ियों का शौक है, पुरानी घड़ियों का, जो कोई बहुत महंगा नहीं खर्चा करता हूँ। घड़ियाँ इतनी नहीं है, चश्मे, किताबों का शौक है जिस पे खर्चा होता है। मैं किताब, मैं ये लेके जाने वाला है भाई, ओ हरिकुंजरू। ये आपने ही दिए? नहीं शायद मैं आपने, मैंने दी, मैं किसी को किताब नहीं देता पगले, मतलब देता हूँ गिफ्ट में, ऐसा नहीं कि मेरे घर पे आओ पढ़। ये मैं लेके जा रहा है। आपको चैरियट्स ऑफ गॉड्स दी थी मैंने कभी?
एनरिच वॉन डैनिकन की। तुम मुझे वहम रक्षामह देने वाले थे। पढ़ के सुनाओ ना दादा, अच्छी हिंदी सुनने को मिलेगी आपके मुंह से, क्योंकि वयम रक्षामः मेरे ख्याल से सबसे सुंदर हिंदी में जो मैंने पढ़ी है कभी आचार्य चतुर्सेन की। तो किताबें जहाँ जाता हूँ या तो कुछ घर लेके जाता हूँ। यू रिमेंबर, हम लोग कैलकाटा में बुक स्टोर गए थे, दासगुप्ता बुक स्टोर पे, मैं और ब्रिजेश शायद प्रो कबड्डी करके ही निकल रहे थे और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। एंड बाय डिफॉल्ट कैलकाटा में जहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट है, जहाँ पर एक बहुत पुरानी दुकान है, अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड, बिलोंग्स टू माई फैमिली, इट्स दासगुप्ता बुक स्टोर। तो बिकॉज आई नो दैट हाउ मच ही लव्स बुक्स, तो हम एक 5 मिनट का हमने एक फास्ट रन मारा था अंदर। आई थिंक दैट वाज द हैप्पीएस्ट आई सॉ यू। 5 मिनट में मेरी गर्दन गीली हो गई थी मुंह से टपकती लार की वजह से। ये तो ऐसा किताब 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 पागल हो किताब किताब, दूसरा कलकत्ता कलकत्ता, तीसरा चारों तरफ बंगाली बंगाली। देयर इज समथिंग अबाउट बंगालीज एंड उस पे आएंगे बाद में। तो किताब, चश्मा, संगीत। अब संगीत तो ठीक है, बुक शेल्फ स्पीकर है दो, एक एम्प है, एक स्ट्रीमर है। चश्मा ठीक है, कबर्ड में रह गया। पत्नी कह रही है कि एक किताब अगर घर में आई ना, या तो आज के बाद इस घर में किताब रहेगी या तो तुम रहोगे। मैं रहूंगी नहीं बोलती, ठीक, जाती ही नहीं कहीं भी। सो ये फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग के अंदर ही, ओपनिंग पे दादा बहुत सुंदर तरीके से एक लड़की का वर्णन किया है, एक अप्सरा का वर्णन किया है, एक दैत्य बाला का वर्णन किया है। आई थिंक ये वही है। हाँ, ऐसी हिंदी शायद अब सुनने को ना मिले, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर रीडिंग इट। तिल तंदुल नाम है चैप्टर का। कज्जल कूट के समान गहन श्यामल अनावृत उन्मुख यौवन। आहा, कज्जल कूट के समान गहन श्यामल अनावृत उन्मुख यौवन। नीलमणि सी ज्योतिर्मयी बड़ी बड़ी आंखें, नीलमणि सी ज्योतिर्मयी बड़ी बड़ी आंखें, क्या बात है। तीखे कटाक्षों से भरपूर। आया, ये मेरी पत्नी की बात कर रहे हैं। हाँ, तब तो एंड तक पहुंचो, दैत्य बाला की बात हो रही है। हटाया, बाद में पढ़ेंगे या इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, रशियन वाला। नहीं, ऐसा नहीं रही, ये पड़ेगा। बढ़िया, एक ये आपको गिफ्ट करनी है और एक एनरिच वॉन डैनिकन। व्हाट आर द बुक्स दैट यू रेफर, और 3 बुक्स बाय ब्रिजेश हीर जी दैट वन शुड रीड? भाई ऐसा है ना, तो जैसे मैं जब बिग बॉस गया था ना, मैं जिंदा रहा, मैं डालडा के डब्बे पे लेबल पढ़ पढ़ के, तो मैं तो कहता हूँ कुछ भी पढ़ो। कोई कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा पहली किताब पकड़ लो, हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। क्लियर स्टमक, क्लियर माइंड, क्लियर हार्ट। तो कहता हूँ ऐसा क्या। और मैं पढ़ रहा हूँ बैटमैन का द लॉन्ग हैलोवीन, क्रिस्टोफर नोलन की फेवरेट बैटमैन है, पढ़ना मज़ेदार है। अब पढ़ूंगा अमेरिकन वैम्पायर, शुरू करूंगा ग्राफिक नॉवल आजकल ये चस्के पे। वाह, व्हाट आर द 3 फिल्म्स यू वुड सजेस्ट? व्हाट आर योर द जॉनर्स दैट ब्रिजेश हीर जी एंजॉयज वाचिंग द मोस्ट? और 3 मूवीज यू थिंक वी शुड वॉच? क्लासिक्स भी हो सकती है। ऑफ कोर्स मैन, मकबूल तो एक बाइबल है हमारे लिए भी। I think what विशाल भारद्वाज has done with मकबूल, I don't even हैदर अपनी जगह ठीक थी, लेकिन nothing like मकबूल। वो हैदर में शाहिद कपूर ने जो सीन किया था चौक में, अनबिलीवेबल है। आपने इरफान भाई के साथ में काम करने वाले थे? मैंने किया भी है। आपने एक फिल्म लिखी थी उनके लिए। तो मैंने इरफान भाई के साथ पहले कलकत्ते में शूट, अगेन बेस्टसेलर्स, स्टार बेस्टसेलर था, गोविंद और गणेश, जहाँ वो एक आर्ट फिल्म डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे, और मैं कतई कायल उनका। तो वो मुझे माय मिस्टर 2 रुपीज़ बुलाते थे, क्योंकि 2 रुपये के नोट पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया होता है उसमें। और इवेंचुअली वो एक दिन ये अनाउंसमेंट करते कि मैं कमर्शियल हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, और मैं उनके स्टूडियो में जाकर फिल्म की रील से उन्हीं का गला घोंट देता हूँ। इरफान भाई के लिए एक फ़िल्म लिखी थी जो हो ना पाई, वेलकम टू कराची। बट हाँ, आई मीन इरफान खान का कोई भी काम उठा के देख लो, कोई भी काम उठा के देख लो। हासिल देखो, क्या बात कर रहे हो यार। तिग्मांशु धूलिया, क्या किया तिग्मांशु धूलिया ने उस फिल्म में। True that. I think Hasil changed his life for us also, for us being the Irfan lovers that we are. What film changed your life? Was it, what project changed your life? For example, all of us, a lot of us have seen you in a TV show that you started off with, Sorry Meri Lorry. Was that the first? सॉरी मेरी लॉरी पहला टीवी शो था, लेकिन बहुत
मैं कह रहा हूँ कि Or like RHTDM was definitely a game changer, but you've done so much more. And when I say this, and I don't say this just randomly, but the world has very little idea of what all that you are, or maybe tukdo tukdo mein sabko pata hai. I'm very lucky that I get to see all the different aspects. so actually I'm saying in terms of creative moment that changed my life, it was a play that I was not a part of. तो मैं इंटरकलीजिएट थिएटर और एलोक्यूशन डिबेटिंग ये सब बहुत कुछ किया करता था और एक मन था कि भाई एक्टर बनना है, किसी को जानता नहीं था, कैसे बने पता नहीं, बम्बई का मेरे परिवार को एनएसडी के एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, होता तो जाता। गनीमत थी कि हम लोग कालबा देवी से शिफ्ट हुए जुहूस की माए हम लोग, और यहाँ आने के बाद मेरे एक मित्र थे जो एक्टर थे ऑलरेडी, अमित, जो मुझे पृथ्वी ले गए एक नाटक दिखाने। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो विक्रम कापड़िया का नाटक था डिनर विथ फ्रेंड्स, समथिंग टू दैट इफेक्ट। पहली बार पृथ्वी में मैंने नाटक देखा, मैं नाटक देख रहा था, वो नाटक देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि ये करना है अपने को, ये ही करना है अपने को। मैं लॉ पढ़ रहा था तब, नौकरी कर रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, फिर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में की, फिर एड एजेंसी में 1.5 साल कॉपी लिखी, लेकिन रियलाइजेशन ये आ चुका था तब तक कि यही तो वो मोमेंट जो था, वो नाटक जो था, हैज चेंज्ड माय लाइफ। एवरी रोल दैट यू प्ले, हाउएवर स्मॉल इट इज़, वेदर इट इज़ कमर्शियल और वेदर इट इज़ नॉट। मैंने इरफान भाई के साथ काली शलवार नाम की एक फिल्म की हुई है, मंटो की कहानी काली शलवार। तो मंटो के एक मित्र थे मोहम्मद भाई करके, सो आई वॉज कास्ट एज मोहम्मद भाई। तो playing Mohammad Bhai, did that change my life? In that instant it did, because it made me a completely new different person. मुझे शायद लगता है मैं शायद एक्टर भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं एस्केपिस्ट हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने आप से खुश हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता, बट मुझे अलग अलग चमड़ा ओढ़ना, अलग कंबल पहनना चमड़े का हर बार अलग अच्छा लगता है, इसलिए शायद मैं एक्टर हूँ। देयरफॉर एवरी रोल, एवरी मोमेंट, एवरी फिल्म चेंजेस यू a little bit inside, and if it doesn't, then you're not being honest with your work as an actor. I'm saying even as a comic, अब जैसे आप कहेंगे कि how does गोलमाल change you? I'm saying गोलमाल gives my body a freedom that I didn't know existed, because my brain allowed it to. But is that brain my brain, or is it the brain of that snake fighter that I'm playing there? People say कि ये तो क्या है, तो comedy है, but ऐसा नहीं होता है। Of course, but don't you enjoy it wherever you go and everybody does this thing? Does it at times bother you, or do you take it with as a badge on your? नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है यार कि वो इतना आइकॉनिक हुआ वो चीज़, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे और भी है रे बाबा, मतलब यार वो उस कदर आइकॉनिक है गोलमाल का साहब कि मैं रास्ते के उस पार चल रहा हूँ और वहाँ से लोग बोलते हैं ये सांप। तो I know, I've seen that. I've seen two kind of reactions of yours. अरे हाँ, when people have done this thing. Sometimes you enjoy it. Sometimes नो आई ऑलवेज एंजॉयड, बट जब लोग कहते हैं ना एक बार वो सांप वाला करके दिखा, तो हम बोलते पैसा दे। you gotta know this thing. अभी 2 दिन पहले हम लोगों का नाटक चल रहा था पिया बहरूपिया मुंबई के अंदर, एंड चूंकि सीट सारी फुल हो गई थी तो कुछ और ऑडियंस मेंबर्स को बिठाने के लिए हमने स्टेज के ऊपर ही गद्दे लगाए थे, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर, और गद्दों पर बैठ के सर नाटक देख रहे थे ब्रिजेश। एंड पता नहीं कोई से एक पर्टिकुलर सीन के अंदर मेरा कैरेक्टर कहीं पे आई डोंट नो, इट वाज एन इम्प्रोवाइजेशन, और वो इनके बगल में जाके मैं बैठता और दूसरे एक्टर को आई जस्ट डू दिस, एंड इनका हाथ उठा के करते। एक तो फर्स्ट यू स्टार्टेड ब्लशिंग फॉर सम, अरे बताओ कि मेरे को ऐसा क्या, अरे यार। बट बॉस उस पूरे नाटक के ओरिजिनल डायलॉग्स पे इतनी लाफ्टर या इतना बड़ा ऑनकोर सुनने को नहीं मिला जितना कि इसके टाइप पे मिला, बिकॉज एवरीबडी कुड सी यू ऑन स्टेज। हाँ, फटी थी ऑडियंस। वहाँ मैं बाहर निकला तो गुरपाल, वरुण ग्रोवर ये सब थे, तो वरुण को कहते बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आपका। मैंने कहा वापर डाला मेरे को रे। You enjoy stage more, you enjoy cinema more, you enjoy radio more? This is a question people ask me because similar pattern पे रहता है, but I follow you so much on. रेडियो को एक सेकंड साइड पे छोड़ते, बिकॉज वो कम्प्लीटली अलग स्पेस है, बट जहाँ तक स्टेज, टेलीविजन, फिल्म, मेरा ये मानना है कि मेरे से एक्टिंग कराओ, कराओ कराओ, मेरे को किधर भी कराओ, मैं बाथरूम में खड़ा होकर एक्टिंग करेगा, मेरे को एक्टिंग कराओ। मैं मानता हूं कि मॉनेटरीली हर एक के अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ग्रेटिफिकेशन वाइज आप स्टेज पे हो तो आपको तुरंत पता चलता है कि भाई आप कितना पॉडी किए, कितना नहीं किए, ठीक है।
सिनेमा में आपको मौका, और नए हक दिए, चलो बचपन से फिर से करते हैं, मौका मिल जाता है आपको. बट आई एम सेइंग कि एवरी टाइम यू एक्ट, वेदर इट्स ऑन स्टेज, ऑन फिल्म, ऑन टीवी, it is an exam every single time, and the magnitude, the gravity of that exam is the same on every medium. So मुझे आई एम सेइंग कि क्या मुझे स्टेज पे अपने आप को ज़्यादा या ज़्यादा फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है? हो सकता है, बिकॉज स्टेज पे जो रोल्स मिलते हैं वो मुझे फिल्म पे ना मिले. सीधी सी बात है ना यार. बट आई एम सेइंग फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि मुझे ये मीडियम ज़्यादा पसंद है, मुझे वो मीडियम ज़्यादा. मेरे को एक्टिंग कराओ ना बाबा, मेरे को एक्टिंग कराएगा, मेरे को मजा आएगा. What do you enjoy watching more, films or stage? I just नहीं realize था कि मैं इतना स्क्रीन टाइम नहीं स्पेंड करता जितना मैं स्टेज टाइम करता हूँ. I would go a distance to go and watch a play more than I would, watch a film अपने मोबाइल पर भी. मैं नाटक अब चुनिंदा देखता हूँ. एक ज़माने में मैं हर एक नाटक देखता था. मतलब ट्यूसडे टू संडे शहर में जहाँ भी नाटक है, मैं अगर फ्री होता तो मैं नाटक देखता था. अब मैं कम नाटक देखता हूँ, चुनिंदा नाटक. मैं पिया बहरूपिया जैसे देखने आया तीसरी बार या चौथी बार, मुझे वो नाटक देखना था. वो नाटक मैंने सुना था कि वो आखिरी शो था. तो स्क्रीन को मैं ऑब्सेसिवली कंज्यूम करता हूँ रे. मेरे को अब ये कम करना पड़ेगा. बट जैसे मैं अब सिनेमा हॉल भी कम जाते हैं क्योंकि आपकी उंगलियों पे है सब कुछ. लेकिन जैसे मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 देखने गया था सिनेमा हॉल में, इतना मजा आया ना मेरे को. बिल्कुल. And what a film. You must have enjoyed it for the fact that you yourself are India's rocket. How's your experience with Marvel's Wastelanders? मजा आ रहा है? What the audience is responding back बहुत with? मजा आया यार लोगों को. And you played Rocket from the Guardians of the Galaxy. This was your second project with Saif after रहना है तेरे दिल में? Yeah? भरत मिलाप टाइप फीलिंग आई. पर नहीं, मुझे वो करने में बहुत मजा आया. रॉकेट करने का मौका मिले तो यार बहुत. And इस बार वाली जो Guardians of the Galaxy आई थी सिनेमा हॉल में, it was all about Rocket. रॉकेट यार वो क्या किया था ना, वो अमेजिंग. Totally. तो मुझे वो मजा. अब जैसे ओपनहाइमर देखने जाऊंगा, ऑब्वियसली आप सिनेमा हॉल जाओगे ना. Yeah. बारबी ठीक है. ना देख रहे तुम बारबी? मेरे को ना लग रहा तुम देखने जाओ. नहीं, मैं देखूंगा. तो बारबी भी देखेंगे क्योंकि फीमेल मेकर है फर्स्ट, और एक सीरियस फीमेल मेकर है. सेकेंडली मैंने सुना है कि वो फिल्म एक एक्सपेक्टेशंस के विपरीत बनी है, तो मुझे देखनी है वो. And I've heard that Barbie's done better than Oppenheimer in the US. एक्सेप्ट इन इंडिया, एवरीवेयर एल्स. इंडिया में अपना क्या, अपन इंडिया में नोलन की पिक्चर आती है तो अपन सब बंगाली बन जाते. I should tell you. नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि ओपनहाइमर, देख अपने पास बहुत मस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. कोचिंग क्लास चालू करो कि ओपनहाइमर कैसे समझने का. जो टेनेट के साथ हुआ था. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सिखा दो, फिर अभी जा ये ले टिकट क्लास की तरफ से. बट नो, मैं दोनों देखूंगा, सिनेमा हॉल में देखूंगा ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स मिशन इम्पॉसिबल. There's always been time that लोग कहते हैं entertainers don't speak up, है ना? But you're not that guy. You've always spoken up. You've spoken up on some very controversial topics also, hard topics also, which any regular celebrity would stay clear of. Because उसे मालूम है कि भाई कल को उसको cancel culture के तहत खत्म कर दिया जा सकता है. You feel scared at times when you speak up. And is that the reason why the rest of our colleagues don't? So my thing is that when I'm speaking up now, I'm not speaking up from a political perspective. I'm speaking up from a social perspective. जैसे जिस कविता की आप बात कर रहे हो वो भी एक सामाजिक पर्सपेक्टिव से मैंने, बिकॉज मेरे अंदर वो भरी हुई थी बात कि एज अ राइट थिंकिंग सिटीजन आपको अगर गलत नहीं लगता है या बुरा नहीं लगता है तो क्या क्या कर रहे हो आप. कैंसिल कल्चर तो आपको पता है कि ऑल परवेजिव है. तो ऑफ कोर्स आदमी को लगता है कि अरे यार क्या बोलना, छोड़ना बाबा. अगेन बहस के आगे भी. True. Where do you see us in the next few years? What do you think is going to be Arithu's future in a world where he's going to be growing up? Is everything going to be AI? Is he going to have you forever? Because AI is going to duplicate or replicate humans forever. They would actually have your image, your personality, and continue to make you live forever even after you're not around. What do you think of that? See, where do I see us in a few years? I see us in अंधेरी only. कहीं नहीं जा रहे, स्पेशली विद द काइंड ऑफ ट्रैफिक. मैं तो बोल रहा हूँ अंधेरी टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला दुनिया का. क्यों? देख, एक तो ऑलमोस्ट मुंबई का कैपिटल है अंधेरी, ठीक है. भयंकर महंगा रियल एस्टेट है.
साउथ ईस्ट एशिया का सबसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दुनिया भर से टूरिस्ट लोग आएंगे ये देखने को कि जो लोग यहाँ घर खरीद रहे वो लोग कौन है। हमको समझने का है कि लोग कौन खरीदता है। क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा? व्हाई डू यू थिंक दिस गोज थ्रू? अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे भी मैं पढ़ रहा था इस चीज को लेके कि डू दे क्या इज दिस सम सैडिस्टिक प्लेजर दैट दे गेट इन पुटिंग पीपल थ्रू दिस थिंग? बिकॉज इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आप एक बेसिक रोड तो बना ही सकते हैं। व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन सच अ सिचुएशन? कौन बोला रोड बना सकते? नहीं बना सकते, हमको नहीं आता है रोड बनाना। पर अपन चांद पे तो चले गए, चंद्रयान तो बन गया। को गया चांद पे, पहुंच गया। क्या शायद अभी कॉल नहीं आया, लेकिन हो सकता है पहुंच गया होंगे अभी तक। और हम मतलब तो अपन थोड़ी, जो रोड के कॉन्ट्रैक्टर्स है उसका चंद्रयान से क्या लेना देना? पैसा खिला खिला के, करप्शन कर कर के बार रोड बनाते हैं, फिर 2 दिन में टूट जाता है। फिर ऐसे खड्डे बनते हैं, बालकंजी बारी सांता क्रूज के सामने खड्डा है, उसमें गिरेगा आदमी तो 7 दिन के बाद विरार में निकलेगा। तो उनको वो चांद पे गए क्या? नहीं। Why do we go through this, Brijesh? Why do you think is a situation like this thing? You've been very vocal about a lot of things that happens around us. Why is this? Are we politically deaf, blind? What seems to be the situation? और इतनी बड़ी हुजूम, इतनी बड़ी जनता, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया भर की, हम बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते कि हमको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अपथी और अपथनी दोनों। गुड वन सर। और दूसरा देख, सच बात ये है ना, बाकी देश का तो छोड़ना, मुंबई के अंदर मेरा कल सुबह का नाश्ता किधर से आएगा, मैं घर वाले को खिलाएगा किधर से, ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। इस लोग कहते हैं ना मुंबई के लोगों के पास टाइम नहीं होता। टाइम इसलिए नहीं होता बिकॉज मैं कल खाएगा क्या, मेरा दिहाड़ी आज नहीं पका अगर तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को बुरा नहीं लगता कि क्या चल रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, बट ये है, इट्स एन एक्सट्रीमली, एंड इसका फ़ायदा अरसों से उठाया जा रहा है, अब भी उठाया जा रहा है और उठाते जाएंगे लोग। आप अगर, आई एम सेइंग एज अ